question. Okay, so for NIB, PYQ, sample question. So Taq polymerase is isolated from. So all we know, Taq polymerase is isolated from Thermus aquaticus. The answer is given below. Which hemoglobin crosses the placenta? Obviously, placenta is processed by the first, the IgG. You can memorize this. G for Gargin, and G is transferred first from crosses the placenta. Then ELISA is primarily based on, obviously, DNA hybridization, not applicable. Protein electrophoresis is not applicable. Cell culture is to be eliminated, and antigen antibody interaction is the right answer. The p-value represents. So p-value is, what is p-value? P-value, probability of H naught is true. It is not correct. Statistical power, it's not correct. It's a probability of obtaining observed result assuming H naught is true. This is correct. Then restriction enzymes act like scissor. Okay, we know molecular scissors. So molecular scissors are always endonucleases. So which blood group is universal donor? Okay, so those have least complication during transfusion. So that type of blood is O negative. HIV belong to. So as a HIV is human immunodeficiency virus. So it's belong to retrovirus. Western blot detects. So Western blot, we know this is snow and drop. So Western for protein. Then which cells produces antibodies? Obviously antibodies produces by which cell? This is a plasma cell. So one going to plasma, another going to memory cells, no? For later on encounter. PCR consists of, the steps of the PCR is very easy question. So it's denaturation, annealing, and extension. The A is right. Gram-positive bacteria retain. Gram-positive bacteria. So gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. So gram-positive primary stain is crystal violet. Powerhouse of the cell. Very basic question, but it comes also. It's a mitochondria. Then which vaccine is live attenuated? So live attenuated vaccine is BCG, and if it is IPV, then it is killed one, and OPV, then it's live. So here it is written IPV, so it is a killed. So BCG is the right option. BCG vaccine is for TB patient. Understood? So coming to 14 number, SDS page separates protein mainly by. So SDS पेज जो सेपरेट करता है प्रोटीन मेनली मॉलिक्यूलर वेट से करता है. डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं, ये आपका कंजर्वेटिव भी नहीं है, डिस्पर्स भी नहीं है. एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, ये वाला डीएनए हुआ था. डीएनए रेप्लिकेशन किस टाइप का मॉडल शो करता है? सेमी कंजर्वेटिव करता है. ये जो हेवी लेवल्ड 15 नाइट्रोजन और 14 नाइट्रोजन के साथ जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, उससे पता लगा जो ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है. CD4 रिसेप्टर इज टारगेटेड बाय. तो CD4 रिसेप्टर जब भी आएगा सबसे पहला आना चाहिए HIV दिमाग में. देन chi-square टेस्ट इज यूज्ड फॉर. अच्छा, chi-square टेस्ट ऑलवेज कैटेगोरिकल वेरिएबल में होता है. तो कैटेगोरिकल वेरिएबल कोरिलेशंस नहीं है, ये गलत, ये मीन नहीं है, एलिमिनेट करके आप कर सकते हो. द वेक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर क्लोनिंग इज. अच्छा, वेक्टर जो क्लोनिंग में यूज किया जाए, ऑब्वियसली वेक्टर वही किया जाएगा जिसमें वो हो. इसमें तो कुछ भी नहीं है जिसमें आप अपना चीज जोड़ पाओ, तो इसमें आ जाएगा प्लाज्मिड. फ्लो साइटोमेट्री. अब फ्लो साइटोमेट्री लोग कर रहे हैं, किस लिए करते हैं? वो करते इसके लिए नहीं, करे इसलिए नहीं, इसके लिए डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए करते हैं. टी सेल्स, बी सेल्स, उसमें क्या बाइंडिंग वो है, वो सब जानने के लिए करते हैं.
देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे प्रोड्यूस किया जाता है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की माइलोमा, माइलोमा जो कैरेक्टर है उसमें एजीपीआरटीज नेगेटिव्स में उन्होंने ऐड कर दिया, देन उसी को उन्होंने कल्चर आउट किया, कल्चर आउट करके प्यूरिफाई करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को जनरेट किया जाता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, अच्छा जब पीएच ऑफ ब्लड आएगा तो ये आता है 7.35 टू 7.45, तो प्रिसाइसली 7.4। देन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली यूज्ड फॉर, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेनली यूज किया जाता है किस लिए किया जाता है? ऑब्वियसली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑलवेज किया जाता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए देखने के लिए। एचबीएसएजी, एचबीएसएजी, एचबीएसएजी ये सरफेस वाला है, तो सरफेस में एचबीएसएजी जो ये सरफेस प्रोटीन है, जो पार्शियल डीएनए होता है, पार्शियल डीएनए, डबल स्ट्रक्चर डीएनए है, डीएसडीएनए, इसमें कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस बी में। देन व्हिच साइटोकाइन इज पायरोजेनिक, पायरोजेनिक मतलब जो फीवर कॉज करे, तो फीवर कॉज करते ही जो पायरोजेनिक याद आना चाहिए आपके पास, इंटरलॉकिन 1। स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव, अच्छा स्टेरिलाइजेशन जो ऑटोक्लेव से किया जाता है उसको किस लिए किया जाता है, मतलब क्या पद्धति है? स्टीम दिया जाएगा अंडर प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग मैंने जैसे बोला स्नो और ड्रॉप जल्दी दिमाग में आना चाहिए, ये दोनों वर्ड जैसे ही दिमाग में आएगा तो स्नो फॉर डीएनए। देन ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली, अब ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट आया था कितना बिलियन पेयर्स है? 3 बिलियन बेस पेयर्स है, 3 बिलियन, 3 बिलियन बेस पेयर्स है इसमें, 3 बिलियन बेस पेयर्स इसमें थे इस प्रोजेक्ट में। इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन इनेट इम्यूनिटी क्या है? ऑब्वियसली बैरियर्स है, तो बैरियर्स क्या है फर्स्ट लाइन में? स्किन और म्यूकोसा है। Which organisms is used for insulin production? इंसुलिन प्रोडक्शन में कौन से ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? ऑब्वियसली क्या यूज किया, आप क्या यूज करोगे इसमें? सबसे इंपॉर्टेंटली आप यूज कर सकते हो इकोलाई। देन सेंसिटिविटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट मींस ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है सबको मालूम होगा, ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी क्या है? Sensitivity is true positive by true positive plus false negative, it's a sensitivity, ठीक है। देन अब आ गया आपका ट्रस्टुजुमैब, ट्रस्टुजुमैब टारगेट्स करता है कौन से रिसेप्टर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टुजुमैब को हर्ट्सिजुमैब जो है एक पहला एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी था जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता था, तो HER2 को। रिटुक्सीमैब टारगेट्स, रिटुक्सीमैब जो है वो किसके लिए किया जाता है? रिटुक्सीमैब टारगेट करता है CD20 को, ये इंपॉर्टेंट है। तो HER2 को कौन करता है? ट्रस्टुजुमैब। रिटुक्सीमैब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी CD20 को ब्लॉक करता है। व्हिच बायोसेफ्टी लेवल इज जनरली यूज्ड फॉर रूटीन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी, कौन सा बायोसेफ्टी यूज किया जाता है? तो रूटीन के लिए किया जाता है BSL-2। अच्छा इसमें और एक क्वेश्चन आप पता लगे, इबोला के लिए कौन सा बायोसेफ्टी यूज किया जाता है? BSL-4, ये पता होना चाहिए। देन रियल टाइम पीसीआर मेजर्स, अब रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम जो पीसीआर है क्या मेजर करते हैं इसमें से? ऑब्वियसली ये मेजर करते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन रियल टाइम। देन द कॉम्प्लीमेंट पाथवे कैन बी एक्टिवेटेड बाय, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, अच्छा कॉम्प्लीमेंट पाथवे कब एक्टिवेट होता है? कॉम्प्लीमेंट पाथवे तभी एक्टिवेट होगा जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, क्योंकि ये तो पहले ही आउट हो गए। अच्छा कॉम्प्लीमेंट पाथवे का सबसे क्या है? मेम्ब्रेन मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनना। जेट स्कोर क्या है? जेट जो स्कोर यूज्ड फॉर, जेट स्कोर जो यूज किया जाता है क्या किस लिए किया जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। देन व्हिच सेल इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अच्छा तो इसमें सबसे पहले नाम आना चाहिए डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स सबसे पहले है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो देन सेंट्रोडोमा, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो डीएनए आरएनए प्रोटीन, ये पहला। प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड है कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है प्लाज्मिड। व्हिच टेस्ट कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, अच्छा दो ग्रुप के मीन को कंपेयर कर रहे हो, एक एक्स बार 1 है और एक्स बार 2 है, इनके मीन्स को कंपेयर कर रहे हो, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? तो सबसे पहले ये जो दो ग्रुप्स है तो उसमें आप टी टेस्ट लगाओगे, अगर उसी में प्री एंड पोस्ट देख रहे हो तो आप लगाओगे पेयर टी टेस्ट, अगर पैरामेट्रिक है, अगर आप उसी में दो ग्रुप के बीच देख रहे हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो आप लगाओगे अनपेयर्ड टी टेस्ट।
तो अनपेयर्ड टी टेस्ट और यहाँ पर पेयर्ड टी टेस्ट, ये थोड़ा आप देख लेना। ठीक है। एंडोटॉक्सिन, अच्छा, बैक्टीरिया बात करते ही हमें पता होना चाहिए बैक्टीरिया में दो चीज टॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्सोटॉक्सिन और एक एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन किस लिए होता है? एंडोटॉक्सिन होता है लिपोपॉलीसैकेराइड, जो कि पार्ट किसका है? लिपोपॉलीसैकेराइड, जो कि पार्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन का बैक्टीरिया के। कौन से? ग्राम नेगेटिव, तो बी ऑप्शन। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एब्जॉर्बेंस, अब इसमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करता है एब्जॉर्बेंस को? तो एब्जॉर्बेंस ऑलवेज मेजर बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें माइक्रोस्कोप भी नहीं है, साइटोमीटर भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके? ऑब्वियसली वीएनटीआर से किया जाता है, वेरिएबल नंबर टू टैंडम रिपीट से, और एसटीआर को देख के डीएनए प्रिंटिंग किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। व्हिच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर हेमेटोलॉजी, कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि हेमेटोलॉजी में यूज किया जाता है? तो फॉर्मेलिन नहीं है, इथेनॉल नहीं है, एसीटोन नहीं है, ईडीटीए किया जाता है। ईडीटीए चिलेटिंग है, तो चिलेशन के लिए उसको यूज में लिया जाता है, चिलेशन ऑफ कैल्शियम। गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस जीएलपी फोकस किसको करता है? डेटा क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी। मार्केटिंग नहीं करता, सेल्स नहीं करता, पेटेंटिंग नहीं करता। टारगेट लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट क्या है? ऑब्वियसली लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट आपका मोनोसाइट है। एनोवा इज यूज्ड टू कंपेयर, एनोवा क्या है? एनोवा है आपके ग्रुप टू ग्रुप कंपैरिजन, G1 G2 G3। तो इसमें सबसे आंसर होगा 3 और मोर मींस। देन व्हिच वैक्सीन इज रिकम्बिनेंट? रिकम्बिनेंट जब भी नाम आएगा तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपके दिमाग में पहले आना चाहिए, जो कि रिकम्बिनेंट वैक्सीन है। The major histocompatibility complex in human is, major histocompatibility, तो major histocompatibility बोलते ही पहले आना चाहिए HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन में, वो HLA है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन इज मेजर फंक्शन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये 100% ठीक है। जो क्वालिटी टेस्टिंग कंट्रोल टेस्टिंग है वैक्सीन का, यही एनआईबी का रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। जो इसका एनआईबी का जो फॉर्मेशन है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन और किट्स के लिए ही किया गया था, तो ट्रू आंसर ये है। तो थैंक यू दोस्तों। सो ये था हमारा पहला 50 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया एज अ सैंपल क्वेश्चन, जो कि एनआईबी के पीएचडी एग्जाम में आ सकता है, जो साइंटिस्ट बी लेवल के कंडक्शन है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।